Good morning, everyone. This is Amit, your English teacher, and today I am going to explain second chapter of class 8 from your Gulmohar book. The title of the chapter is The Narayanpur Incident. This chapter is an extract from a book. That book is written by Mr. Shashi Deshpande. At first, I will give you a brief introduction of this story, The Narayanpur Incident. So the story is about ordinary citizens in a small town or village. In this chapter, the name of that small town is Narayanpur. These ordinary citizens perform extraordinary things during the Quit India movement. As we know that Quit India movement was started on 8th of August 1942 under the leadership of Mahatma Gandhi. Through this chapter, we will see that how does how do the people of ordinary people of countryside get affected by such large movement like Quit India movement. The main characters are Mohan, Babu and Manju. These all are siblings. When we get through this story, we will know that Mohan, the oldest of the three kids, goes underground to carry on the freedom struggle. Mother and the remaining children, Babu and Manju, are forced to move to Narayanpur. Narayanpur, an otherwise sleepy town, awakes and erupts into action when the Quit India movement slowly began to cover all over country in 1942. The police was still applying armed tactics. They also applied brutal method to control the protest, but they could not manage to suppress this protest completely. Now I want to tell you something about the author. Shashi Deshpande is a well-known English writer, and his writing skill is very simple and convincing. He can make the narrative extremely engaging at the same time. It is the peculiarity of this writer. So this story is very interesting, and now I am going to explain this story text line by line. So open your book, The Narayanpur Incident, Chapter 2, Unit 2, and listen to me carefully. I will explain all word meanings, phrases, idioms clearly. So let us start the original text. 8 August 1942, the Quit India movement begins. 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है. Babu and Manju suddenly find themselves part of all this when their schools close down
and their father is put behind bars. बाबू एंड मंजू अचानक से खुद को इन सब चीजों का हिस्सा पाते हैं, अपने आप को इसमें शामिल पाते हैं. फाइंड देमसेल्व्स पार्ट ऑफ ऑल दिस. अचानक से इन सब चीजों का अपने आप को एक हिस्सा बना हुआ पाते हैं, उसमें शामिल पाते हैं. When their schools close down and their father is put behind bars. जब उनके विद्यालय बंद हो जाते हैं और उनके पिताजी जेल में बंद कर दिए जाते हैं. पुट बिहाइंड बार्स का मतलब है पुट इन जेल, जेल में कैद कर देना. देयर ब्रदर मोहन बिकम्स इन्वॉल्व इन द मूवमेंट. इनका भाई जो मोहन होता है, इनका जो मोहन वाज द एल्डेस्ट वन, ये सबसे बड़ा होता है, ये इस आंदोलन में भाग लेता है. एंड द रेस्ट ऑफ द फैमिली मूव्स टू द स्मॉल टाउन ऑफ नारायणपुर. और बाकी के इनके पूरे परिवार के सदस्यों को नारायणपुर नाम के एक छोटे से शहर में जाना पड़ता है और वो वहीं रहना शुरू कर देते हैं. बट नाउ मोहन हैज टर्न्ड अप इन नारायणपुर विथ हिज फ्रेंड्स. अब यहाँ मोहन अपने मित्र सुमन के साथ मिलता है, उससे मिलता है. एंड द क्विट इंडिया मूवमेंट हैज गेन्ड मोमेंटम. गेन्ड मोमेंटम का मतलब होता है मोर एक्टिव. और ये जो भारत छोड़ो आंदोलन होता है, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये और भी ज्यादा एक्टिव हो जाता है. अर्थात मोहन को गांव में भी एक साथी मिल जाता है और वो दोनों मिलकर इस आंदोलन को आगे जारी रखना तय करते हैं. जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये चैप्टर पूरी तरह से भारत छोड़ो आंदोलन के बैकग्राउंड पर आधारित है. दिस चैप्टर इज सेट इन द बैकग्राउंड ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट व्हेन दिस मूवमेंट बिगिंस ऑन 8th of August 1942. बाबू डिसाइड्स टू वॉच अ प्रोसेशन दैट मोहन इज टेकिंग पार्ट इन. देखो, प्रोसेशन का मतलब होता है, जैसे शब्द हम बोलते हैं पैदल मार्च, रैली, श्रृंखला, तो ये जितने भी होते हैं ये सबके सब प्रोसेशन के टर्म में ही हम इनको डिफाइन कर सकते हैं. इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो लाइन ऑफ पीपुल इन ऑर्डरली सीक्वेंस, एक उचित श्रृंखला होती है उससे प्रोसेशन बोलते हैं. कि श्रृंखला, मानव श्रृंखला को बोल सकते हैं, रैली को बोल सकते हैं, पैदल मार्च को बोल सकते हैं. ये है कि भाई मैं भी उस आंदोलन को देखूंगा. दैट मोहन इज टेकिंग पार्ट इन. मोहन जी लेता है एंड टेक्स मंजू विथ हिम, और मंजू को भी अपने साथ ले जाता है. देयर मदर डज नॉट नो अबाउट देयर प्लान. उनकी माँ उनके योजना के बारे में नहीं जानती हैं. सो द चिल्ड्रन टू देयर हाउस विद देयर नेबर. इसलिए बच्चे क्या करते हैं, घर की चाबी अपने पड़ोसी के पास दे देते हैं. रामाबाई. अब हम ये पढ़ के पता करते हैं कि आगे होता क्या है. तो अभी जो पैराग्राफ मैंने पढ़ाया, जो इंट्रोडक्टरी पैसेज था, इसके वर्ड मीनिंग मैंने आपको क्लियर कर दिया. एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ. पुट बिहाइंड जेल, एक फ्रेजल वर्ब जिसको